Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. As you all are promoted to class 6, I am your English teacher. My name is Uzma Munir. Open your course books of active English. Today we shall start unit number 1. For this purpose, open your books at page number 8. Now you can see, as the name is written, my relationship with my father. In this unit you will learn about the relationship between father and son. As you know, everyone has very loving, caring and friendly relationship with his father. But in this story, the boy has very strange kind of relationship with his father. He thought his father a strange man with a strange attitude, who never come close to him. Why he thought strange about his father, we will learn at the end of this story. Before you read, you have some question in your minds. Do you think family relationships are important for a child? What are some of the occasions when family relationships have mattered the most to you? At the end of the story, maybe everything will be clear. Let's start. Paragraph number 1. My earliest memories of waking up, screaming with fright at finding a strange man in strange clothes leaning over my cot, staring at me. Okay, just a minute. Everyone must have a lead pencil in his hand to underline the important words and write the meanings by the side of the book. Okay. Now in the first line there is a word screaming. It means loud cry of pain, fright, sudden great fear. The strange man I was shortly to find out was my father, and the funny clothes were his sergeant's uniform. It was August 1945. The war was over and he was home from the front. I would therefore have been almost 3 years old at the time. Now, in this paragraph, the boy is going to tell us about the memory of his very लिटिल बीइंग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ऑफ ओनली 3 years कि वो 3 साल का बच्चा था और उसकी अर्ली मेमोरी जो उस वक़्त की उसके माइंड में आती है अपने फादर के बारे में. ही थॉट हिज फादर अ स्ट्रेंज मैन. वो अपने फादर को स्ट्रेंज मैन समझता था. व्हेन ही वाज लीनिंग ओवर हिज कॉट, मतलब कि वो एक झूले में पड़ा हुआ है और उसके फादर जो हैं वो उस पर स्टेयर करें. स्टेयर मीन्स होते हैं टू लुक एट. उसको देख रहे हैं और ये उसके माइंड में मेमोरी थी कि स्ट्रेंज से फादर हैं, स्ट्रेंज यूनिफॉर्म है. बिकॉज हिज फादर वाज हैविंग एन आर्मी रैंक, सर्जेंट्स यूनिफॉर्म शोज दैट. और 1945 की जो वॉर थी उसके ख़त्म होने के बाद जब उसके फादर आते हैं तो ये उसकी सारी वो मेमोरी जो उसके माइंड में है वो उसको अ लिटिल बिट गिविंग हिम अ फियर. थोड़ा बहुत उसको खौफ है या पेन है या जो भी उसको है अपने फादर की यूनिफॉर्म से या अपने फादर की लुक से वो ये फील कर रहे हैं और ये फीलिंग्स वो आप सबको एक्सप्रेस कर रहे हैं. नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 2. I mention this episode not just because it is the first thing I remember, but also because it was somehow representative of the relationship which I was to have with my father for the rest of his life. I was terrified. Terrified means scared. Terrified of him, and I was a complete mystery to him. Mystery means secret. You also have listened a word representative. Representative is a person who describes others or represent others. अब नाउ इन दिस पैराग्राफ, अब वो जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें वो क्या सोच रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट कि वो
अपने फादर के रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ इतना ही है कि जो उसके दिल में पहले दिन से एक फ्राइटनेस थी, फ्राइटफुल था, टेरिफाइड था, जो एक खौफ था, वो उसके ज़हन में अपने फादर के लिए रहा शुरू से लेकर टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, कि जब तक कि वो बड़ा हुआ तब तक के लिए। और वो यही सोचता था कि मैं अपने फादर से इसलिए टेरिफाइड रहता था कि वो मेरे लिए एक सीक्रेट थे, एक मिस्ट्री थे, जो मेरे सामने ओपन नहीं हुए। मतलब उन्होंने अपना था कि अपने आप को उसके फादर शो नहीं करते थे कि इफ़ ही वॉज हैप्पी तो वो भी उसकी खुशी शो नहीं कर पाते, और अगर वो गुस्से में है या कोई इस तरह से है तो भी ये होता था कि एंगर तो वो शो कर देते हैं, लेकिन बाकी वो अपने फादर के एज ए मिस्ट्री ही ले रहा था। यही उसके माइंड में हमेशा से अपने फादर के लिए रहा, और वो एंड तक ही रहा। थर्ड पैराग्राफ, द बॉय हु हंग ओवर माई कॉट द मैन हु hung over my cot was indeed a stranger to me, since my father had not been home for more than 2 years. नाउ ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द टाइम कि एट द टाइम एक दफ़ा ऐसा भी वक्त आया जब उसके फादर 2 years के लिए घर पर नहीं आए, सो दैट ही फाइंड हिज फादर अ स्ट्रेंजर। कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, कोई आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री भी जॉब कर रहे होते हैं, तो वो आफ्टर अ वीक और फोर्टनाइटली और आफ्टर अ मंथ आते हैं, वो ये लीव्स पे आते हैं। लेकिन उसके जहन में सिर्फ जस्ट यही था कि उसके फादर जो थे वो मोर देन 2 years तक घर नहीं आए, तो उसके जो रिलेशनशिप अपने फादर के साथ हैं दैट वाज नॉट द फ्रेंडली एट दैट टाइम। The reason for this are known to me. Like so many others, my father was reticent about the details of his war experiences, and I never asked him to account for his absence. Reticent means reserved. So he find his father as a reserved person, कि वो अपने बेटे के साथ भी बहुत फ्रेंडली नहीं थे, रिजर्व से थे। और यही वजह थी, वो उसको बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ में आती थी कि मेरे फादर जो हैं उनके साथ ये मेरा रिलेशनशिप क्यों इस तरह का है, या मेरे फादर रिजर्व से हैं, वो अपने वॉर एक्सपीरियंस, जाहिर है वो एक आर्मी रैंक के थे, तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो वॉर पे, आउट ऑफ हाउस मतलब घर से बाहर रहने का ज़्यादा था, अपनी फैमिली के साथ वो इतने अटैच नहीं थे। सो दैट यही जो प्रॉब्लम थी वो उस बच्चे के साथ काफ़ी देर तक चलती रही। Soldiers usually get some form of leave, but perhaps this was not always the case in times of conflict. Conflict means fight or disagreement. Now the same thing कि अब उसके जो अपने फादर के साथ रिलेशनशिप थे वो उनकी एब्सेंस में भी, और जो थे वो एक कॉन्फ्लिक्ट उनमें रहा। एक अकाउंट मीन्स नैरेटिव। सोल्जर्स यूजुअली लीव्स पे आते हैं, उन्हें छुट्टियां होती हैं, लेकिन उसके फादर के सिलसिले में ये डिफरेंट वन था कि उसे ये लगता था कि मेरे फादर जो हैं वो हमेशा अपनी जॉब पे ही रहते हैं, सो दैट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड्स। ओके, पैराग्राफ नंबर 4, फॉर वट एवर रीज़न ही वॉज कम्प्लीटली अननोन टू मी व्हेन ही रिटर्न्ड। Sadly, he was to remain a stranger to me even when I grew to boyhood and later to manhood. Now, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि वो क्या रीज़न दे रहे हैं कि वो अपने फादर के दरमियान वो फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं कर सका, ना फादर उसके साथ इतना क्लोज हुए, जिसकी वजह से उसके दरमियान और उसके फादर के दरमियान एक स्ट्रेंजर सा, एक अजनबी का एटीट्यूड ही रहा। और वो यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ तक कि मैं एक बॉयहुड बड़ा हो गया, उसके बाद मैं मैनहुड में भी आ गया। मतलब जैसे आप बॉयहुड कहते हैं कि आप टीनेजर में आ गए, उसके बाद 20s में चले गए, तो उसका अपने फादर के साथ जो फ्रेंडली रिलेशनशिप था वो नहीं हो सका। तो इस तरह से वो सारा जो है वो सैडली भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमारे दरमियान में कोई भी एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं था कि वो अपने फादर के साथ कोई भी फ्रेंडली किस्म का रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर सकता। Completely different in personality, we just never seem to get close to each other or to find out what made the other tick.
His return home was a rude awakening for me, as during his absence I had enjoyed the full attention and companionship of my beautiful, gentle, and artistic mother. अब उसकी पर्सनैलिटी क्या थी कि वो अपने फादर से क्यों क्लोज नहीं है, कि जब भी उसके फादर आते थे, द बॉय हैज़ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिज मदर। मतलब उसकी मदर बहुत ब्यूटीफुल सी थी, जेंटल थी, आर्टिस्टिक मदर थी। वो उनके साथ रहता था, उनकी कंपनी को एंजॉय करता था। एंड ही फेल्ट दैट हिज फादर कमिंग लाइक अ रूड पर्सन, क्योंकि वो आर्मी में थे, उनका एटीट्यूड और तरह का होगा, वो एक डिसिप्लिनर किस्म के बंदे थे। लेकिन वो अपने फादर की उस डिसिप्लिनर क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था। सो दैट वो यही कहता था कि मेरे अपने फादर के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो इतने अच्छे नहीं थे। पैराग्राफ नंबर 5। ऑन हिज रिटर्न होम from the front, my father simply swapped one uniform for another. He joined the police force. My father never seemed happy in ordinary clothes, civis as he called them. It was as though he needed a uniform to endure with an identity, and indeed, when he was in an ordinary suit, he seemed to shrink in stature. The word the word indo means big gift, shrink, squeeze, stature, personality और आउटलुक होती है। तो नाउ इन दिस पैराग्राफ द बॉय वांटेड टू टेल दैट हिज फादर वाज a different kind of a man. He has changed his job from sergeants to another police job he has joined. He was actually not happy in ordinary clothes. वो आम जो घर के कपड़े होते हैं जिनको पहन कर लोग easy फील करते हैं, उसके फादर जो थे वो उन कपड़ों में, मतलब उस आम से क्लोथ्स में वो अपने आप को हैप्पी नहीं फील करते थे। उनको ज़्यादा अच्छा ये लगता था कि उनकी एक आइडेंटिटी है, दैट इज़ हिज यूनिफॉर्म, हिज रैंक, हिज जॉब, और वो उसी को पसंद करते थे। एंड ही हैज़ डन वेरी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर हिज जॉब, स्पेशली व्हेन ही वेंट इन पुलिस। सो उसके फादर ने जो अपनी आर्मी रैंक की सर्जेंट की जॉब थी, वहाँ से जॉब छोड़ के पुलिस फोर्स जो थी वो ज्वाइन कर ली थी। I am sure that one of the main reasons for my father's love of uniforms was that they were symbols of authority. Authority means the right or power to give orders to other people. So, जो उसके फादर को अपनी यूनिफॉर्म से जो ज़्यादा लव था या वो ज़्यादा पहनना पसंद करते थे, वो यही वजह थी कि उसके फादर के माइंड में यही था, एक सिंबल था या माइंड में एक बात थी कि एक राइट होता है कि बंदा अगले शख्स को, किसी को ऑर्डर करते हैं, वो अथॉरिटेटिव होता है उसमें, तो इस वजह से वो उसको पसंद करते थे। माई फादर वॉज नथिंग इफ़ नॉट एन अथॉरिटेरियन. This made him a strict discipliner, even a bully as a father, and I bear the emotional and mental scars of his treatment of me to this day. Scar mark. I am lucky that I do not also bear physical scars, because he sometimes beat me quite severely with a cane. So his father was same like other fathers who do not like bad behavior of the children or carelessness of the children, mishandling of the children. सो उसके फादर जो थे वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर थे, बहुत ज़्यादा नज़्म ज़ब्त के पाबंद थे, जैसा कि हम आप लोगों को कहते हैं कि डिसिप्लिन्स मेक यू बेस्ट। तो ये डिसिप्लिन ही होता है जिसकी वजह से हम लोगों में अच्छे बन सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके फादर जो थे वो भी एक डिसिप्लिनर थे,
और यही वजह थी कि जब कभी उसके फादर के साथ जो बिहेवियर में एक नॉर्मल एटीट्यूड नहीं आ सका था, उसकी वजह भी ये थी कि उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा मारते थे, केन से मारते थे। ये चीज़ हम नहीं कहते हैं, पेरेंट्स को प्यार से मोहब्बत से समझाना चाहिए। ये बहुत सी चीज़ें होती हैं वो हम जो गुस्से से नहीं अपने बच्चों से रिसीव कर सकते, वो हम उनसे प्यार से कर लेते हैं। अगर हम आपको प्यार से डील कर रहे हैं तो आपको भी हमें इन रिटर्न उसी तरह से रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसी प्यार का, कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, सबके लिए अच्छा रिस्पॉन्स दें। और अगर आपके साथ हम भी इसके फादर की तरह का कोई बिहेवियर करेंगे, इट मीन्स यू डू नॉट लाइक योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, मे बी यू विल बी रूड विद अस। वो अच्छा नहीं होता, वो हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। सो दैट इसमें भी यही है कि बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रन। अब उसके फादर की हैंडलिंग जो थी, उसके साथ इतनी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी जो वो बच्चा बियर नहीं कर सकता था। सो दैट उसके माइंड में अपने फादर के लिए एक ऐसा ही एटीट्यूड, ऐसा ही एक मार्क रह गया अपने फादर के लिए कि वो इमोशनली और मेंटली वो इन चीज़ों को अपने फादर की तरफ से बियर नहीं कर पा रहा था कि उसके फादर की ट्रीटमेंट उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मे बी उसके फादर अपनी एंड पे बेहतर समझते हों, लेकिन एज ए चाइल्ड इट वॉज नॉट गुड फॉर द बॉय। Okay, paragraph number 7. In view of this, it is fortunate that my father was never much of a presence in my life. अब यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने आप को फॉर्चुनेट समझ रहा है कि अपने फादर की, उसकी ज़िंदगी में फादर की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं थी। जाहिर है वो जॉब पे थे, आउट ऑफ सिटी होते थे या आउट ऑफ कंट्री होते थे, या वट एवर आप जो भी समझ लें, लेकिन वो जो बच्चा था उसके माइंड में ये बात एक फॉर्चुनेट थी, वो उसको अपनी खुशकिस्मती समझता था। लेकिन हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू हैव टू लिव विद पेरेंट्स हु होल्ड अस, हु हैंडल अस विद लव एंड केयर। तो ये उसका माइंड है, आपका नहीं है। यू हैव टू थिंक योर सेल्फ अबाउट योर पेरेंट्स, स्पेशली अबाउट योर फादर। वो आपके अपने व्यूज़ होंगे, ये उस बच्चे के व्यूज़ हैं, ये आपने अपने ऊपर नहीं अप्लाई करने और ना ही ये आपके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव वेरी लविंग, वेरी केयरिंग एंड वेरी नाइस फ्रेंडली fathers. This was partially because he worked long, irregular hours. It is likely that he spent longer at his job than was strictly necessary because he was extremely ambitious. Ambitious means challenging, and would have wanted to impress his superior officers with his zeal. Zeals mean love with his work. So, अब उसके फादर की वर्किंग ज़्यादा थी, ही वॉज वेरी इरेगुलर इन हिज आवर्स, मीन्स ही वर्क अ लॉट फॉर हिज ऑफिस, फॉर हिज डिपार्टमेंट। मोस्टली ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट हिज जॉब, कि वो ज़्यादातर वक्त अपनी जॉब पे गुजारते थे। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, उनका एक जज्बा था बहुत ज़्यादा कि वो अपने ऑफिसर्स को, अपने सुपीरियर्स को अपनी अज़्म से, अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाएं। तो जो कुछ करके दिखाने का जज्बा होता है, फिर उसमें आप अपना घर, अपनी फैमिली, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सबको एक साइड पे कर देते हैं, और फिर आपके लिए आपकी जो जॉब होती है वो आपके अपना कंट्री और आपके लोगों की हेल्प, उनकी वेलफेयर होती है। तो स्पेशली उसके फादर क्योंकि पुलिस में थे, सो दैट ही वांट टू सिक्योर एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, हिज पीपल, नॉट फॉर हिज फैमिली। ओके, कि उसके फादर क्योंकि पुलिस में थे, उनका जज्बा, उनका जोश, उनका जो भी हॉबीज़ या उनकी जो भी चीज़ें थी, चैलेंज वो अपने कंट्री और अपने लोगों के लिए कर रहे थे। अपनी फैमिली को वो इतना नहीं कर रहे थे जितना वो अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को इम्प्रेस करने के लिए वो मेहनत कर रहे थे।
ये उनका कोई ड्रॉबैक नहीं था, बल्कि ये उनकी एक एफर्ट थी जो वो अपने लिए या अपने लोगों के लिए कर रहे थे. दिस zeal and to be fair probably also his ability paid off, and he ascended the police career ladder quite rapidly, becoming a chief inspector when he was still relatively young. So उनका जो वर्क था उसने क्या किया, दिस वॉज हिज फादर्स हार्ड वर्क दैट टेक्स हिम टूवर्ड्स सक्सेस. इसीलिए हम कहते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही तेज़ी से हम प्रोग्रेस की तरफ और सक्सेस की तरफ जाएंगे. तो उसके फादर का जो जज्बा था आगे बढ़ने का, जो एबिलिटी थी, ना सिर्फ उनको उसकी पेमेंट, उसकी सैलरी या जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको दी जाती थी ज़्यादा उनकी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, बल्कि जो उनकी एक एक्सीलेंट वर्क था वो यही था कि वो चीफ इंस्पेक्टर बन गए थे अपनी यंग एज में, जिसको आप कहते हैं कि इफ़ समवन वर्क हार्ड, studies day and night, he get the fruit of his efforts. तो आप जितनी मेहनत करते हैं आप अपनी efforts का वो fruit अपनी अच्छी पोजीशन की शक्ल में हासिल कर लेते हैं. तो इसी तरह उसके फादर भी यही थे कि उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की लैडर, वो जो सीढ़ी थी तरक्की का जीना, वो बहुत तेज़ी से पार करके सिर्फ अपनी मेहनत के बल पे. Paragraph number 8. However, it was not just work which kept him away from me. He simply wasn't the kind of a man who liked to spend much time at home. When he wasn't at work, he would be out indulging in one of his many hobbies. Hobbies, pursuits, शौक, जो इनको आप पास टाइम कहते हैं कि फारिग वक्त में जो आप काम करना चाह रहे हो, दैट बिकम योर हॉबी. These tends to reflect the fact that he was what would now be known as a physical fitness free desire और strong desire. अब उसके फादर जो थे उनका जो वर्क था दैट वाज नॉट जस्ट हिज वर्क, कि वो काम ही नहीं था जिससे कि वो अपने घर से दूर रहे हों. नो, इट वाज नथिंग. ना सिर्फ वो वर्क था, बल्कि आफ्टर हिज जॉब व्हेन एवर ही कम्स बैक टू हिज हाउस, he spent most of his time out of the house or out to perform other works. उनकी जॉब के बाद घर आना, जैसे मोस्टली होता है कि घर में आपके फादर आते हैं, उनके पास अगर इफ़ ही डजंट हैव एनी अदर एक्टिविटी, तो क्या होता है, मे बी एवरीवन सी इज फादर आफ्टर कमिंग बैक होम, व्हाट डू दे डू. आपके माइंड में आ गया होगा सबके फादर क्या क्या कर रहे होते हैं. मे बी सम हैज़ जॉइन सम जिम, अदर हैज़ सम लाइब्रेरी टू सिट इन एंड रीड books, get the information. Many has a hobby to watch television, listening news and get the information. So इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. सम हैव सम फ्रेंड्स टू गो आउट एंड देन मीट देम. तो ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं. लेकिन उसके फादर की जो पर्टिकुलर हॉबी थी वो क्या था कि ही गो आउट एंड देन हैव अ फिटनेस क्लब और फिज़िकल फिटनेस फ्रीक. उनको शौक था कि हैविंग सम जिम और इस तरह के काम जो थे वो इन हॉबीज़ में इंगलब थे, उसमें फिक्स होते थे. अपने घर पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते थे, बल्कि वो बाहर रहकर डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करके और एक्टिविटीज़ जो ट्रेनिंग की होती हैं उस तरह की चीज़ें वो पसंद करते थे और वो उन्हीं को लेकर चलते थे. This was well before the modern obsession with gym and working out, but he did weight training, boxed, swam, played football and golf, and went hill walking all on a regular basis. So, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि यू सम ऑफ यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और table tennis or like that kind of games, or if you wanted to play indoor games that are like carom or table tennis or ludo type of games which most of you play these kinds of games. तो उनकी भी इस तरह से था कि वो जिम ज्वाइन किया उन्होंने, उनकी ट्रेनिंग देते थे बॉक्सिंग की, स्विमिंग की और फुटबॉल और गोल्फ और हिल वॉकिंग वगैरह. ये सारी जो थी ये उनकी एक्टिविटीज़ थी. When he was not indulging in physical exercise himself, he was encouraging others to do so.
उस अपने फादर के बारे में एक्चुअली वो सारा बता रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, उनकी हॉबीज़ क्या थी, वो सब। तो उनमें ये भी था कि अगर वो खुद फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो वो दूसरों को ट्रेन करते थे इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए। Thus he trained the local junior football team and ran a local boys club where he coached some of them in boxing and others in swimming. इस पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने एक लोकल बॉयज़ क्लब ज्वाइन किया हुआ था जहाँ पे वो बच्चों को स्विमिंग की, बॉक्सिंग की जो ट्रेनिंग है वो देते थे। At paragraph number 9, what you may ask was his only son, indeed only child, doing when all this activity was taking place. I was indulging in the hobbies which I enjoyed. These were sedentary and the diametrically opposed to those of my active father. Sedentary means motionless. अब उसकी और उसके फादर के दरमियान में जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो इन एक्टिविटीज़ की बिना पर भी था। क्या था कि हिज फादर वाज वेरी एक्टिव मैन, आउटडोर गेम्स वो पसंद करते थे। उनकी एक्टिविटीज़ और उस बॉय की एक्टिविटीज़ जो थी वो क्वाइट डिफरेंट थी। जिस तरह से हम कहते हैं कि हम अपनी जो विल होती है वो हम आप पे फोर्स नहीं कर सकते कि आप यही करें, ठीक है। मोस्टली पेरेंट्स को होते हैं कि दे वांटेड टू सी देयर चाइल्ड एज अ डॉक्टर एंड इंजीनियर और जॉइन सम आर्मी, सेम लाइक दिस। बट मे बी आपके माइंड जो है वो डिफरेंट हो। एनी वन वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट, कैलीग्राफर और मैनी मोर। तो आपकी अपनी हॉबीज़ होती हैं, आपके अपने माइंड होते हैं, आप अपने मुताबिक चलना चाह रहे होते हैं और हम पेरेंट्स जो हैं वो आपको अपने मुताबिक कोशिश कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ उस बॉय के साथ थी कि वो अपनी लाइफ खुद अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनको ज़्यादा इंजॉय करता था। और उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी कि वो बता रहे हैं अब नेक्स्ट से, आई लव ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एडमिरेबल अर्ली परसुएट्स हॉबीज़ for one who was to become an artist and art critic as I have put, but pursuits which did not endear me to my father. So उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो तो ये ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग, सेम लाइक दिस। में भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको यही एक्टिविटीज़ और यही चीज़ें पसंद होंगी और आपके फादर, आपकी मदर आपको फोर्स करते होंगे कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। मे बी यू डोंट लाइक इट, लेकिन दे बेटर नो इट कि व्हाट विल बी बेस्ट प्रोफेशन फॉर यू। अब ये नहीं है कि आप उस बच्चे को देखकर ये सोचें कि अगर वो ये ड्राइंग, पेंटिंग कर रहे हैं तो हम भी कर लें। ठीक है, एट द अदर साइड आप अगर इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जो माइंड दिया उससे आप अपनी एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हुए अपने पेरेंट्स की हेल्प से उनको मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उस बच्चे का अपने फादर के साथ यही कॉन्फ्लिक्ट था कि उसके जो फादर थे उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट थी और बच्चे की डिफरेंट थी, सो दैट द बॉय वॉज नॉट वेरी डियर टू हिज फादर। Now in the last paragraph, I was indeed a disappointment to him. He despised the kind of activities which I enjoyed, and he had to face the fact that a strong, fit man like himself had somehow fathered a weakly child who was often ill. If I had not so strongly resembled him in facial features, he might well have doubted that he was my biological father. Despite hated. अब लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है कि वो यही बताना चाह रहे हैं कि मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट, मैं अपने फादर के लिए एज ए डिसअपॉइंटमेंट था कि जो एक्टिविटीज़ वो इंजॉय करते थे वो मैं नहीं इंजॉय कर सकता था। वो एक फिट और स्ट्रॉन्ग मैन थे जबकि मैं उनके नज़दीक एक बहुत वीक सा चाइल्ड था जो हर वक्त बीमार रहता था। ना उसकी स्ट्रॉन्ग अपने फादर से रिजेम्बलेंस थी, जस्ट सिर्फ उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे
दैट मेक हिम हिज सन, मतलब वो बायोलॉजिकल फादर जो थे वो इसी उसमें था, अदरवाइज कोई इतना नहीं था। ओके, यू हैव लिसन द स्टोरी वेरी केयरफुली। व्हाट यू हैव टू डू, you have to write down the words and meanings of from this lesson and read it very carefully. uh, Words meanings are attached with this chapter, and you have to write them down in your notebooks very neatly and carefully. Don't forget to write indexes also. Take care. Bye.